Hello students, welcome to this class lecture number 7 of physics, and probably this lecture number 7, I think this will be maybe last lecture, because in this lecture we will discuss about different type of numericals, and numericals will be based on the following formulas. You have had different type of equations. There are 3 equations of motion, and in previous video we have proved graphically these 3 equations, and mathematically also. So I think you will prepare derivations mathematically and graphically both. Now I hope you are ready to solve numericals based on these formulas. There are so many formulas, and in previous videos I have been already told about how to convert speed. When speed is given in kilometer per hour, then speed, if speed is given in kilometer per hour, then how to convert meter per second, and vice versa, if speed is given in meter per second, then how to convert speed into kilometer per hour. Student, suppose any speed x kilometer per hour is given here, then if you want to convert this speed from kilometer per hour to meter per second, then I think you should multiply it by 5/18, and this will become meter per second. x कोई भी स्पीड हो सकती है. सपोज कीजिए आपका 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो आप यहाँ रखेंगे 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 90 इंटू 5/18 और सॉल्व कर देंगे तो वो आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी. रिमेंबर, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड वी शुड मल्टीप्लाई बाई 5/18 इन किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट ट्रिक स्टूडेंट. सिमिलरली, यदि आपकी स्पीड x मीटर पर सेकंड गिवन है, देन आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? x मल्टीप्लाइड बाई 18/5, then this becomes kilometer per hour. So student, remember this, and how to convert. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई गई कि किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, एंड मीटर पर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में. ओके स्टूडेंट्स, now come to first numerical. Students, we have a scooterist applies brakes and bring his scooter to rest in 1.5 second. If the retardation of brakes is 5 meter per second square, calculate the initial velocity of the scooter and velocity in kilometer per hour. तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं ये सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हैं. हमें पढ़ना है केयरफुली, एंड देन उसके बाद लिखना है क्या क्या गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन क्वांटिटीज. हियर टाइम इज गिवन, t मीन्स टाइम 1.5 सेकंड, एंड दिस इज एक्सेलरेशन इन केस रिटार्डेशन. तो ये आपका रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, that is negative acceleration. सो a की जो वैल्यू होगी वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टूडेंट, जहां भी रिटार्डेशन वर्ड आएगा आप a की वैल्यू निगेटिव लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ आप देखिए, स्कूटर अप्लाइज ब्रेक, स्कूटरिस्ट अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक लगा दिया. आफ्टर 1.5 सेकंड वो स्कूटर रेस्ट पे आ गया. तो वो स्कूटर रेस्ट पे आया तो स्टूडेंट मतलब क्या हुआ? अगर स्कूटर रेस्ट पे आया तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ था u, मालूम नहीं, यहाँ आफ्टर 1.5 सेकंड ये स्कूटर रेस्ट पे आ गया. इट मीन्स सॉरी, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0, ये आपका रेस्ट पोजीशन शो कर रहा है. तो आफ्टर 1.5 सेकंड स्कूटर कम टू द रेस्ट, दैट इज final velocity v is equal to 0. This is final velocity. Okay student, initial
calculate the initial velocity of the scooter. We have to find what was initial velocity, that is u is equal to question mark. We have to find, students, what was initial velocity of the scooter. So student, remember, with the help of this question and given things, we have timing, acceleration, final velocity, initial velocity. अब हमें ये सोचना है कि आउट ऑफ 3 व्हिच ऑफ द फार्मूला इज यूज्ड हियर, यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे. इनको देखते हैं. हमारे पास TABU है. ऐसा आप हर क्वेश्चन में करेंगे. क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली, इसके बाद उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं लिखेंगे जो गिवन है, इसके बाद टैली करेंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें TABU है. तो आप देखिए स्टार्टिंग में TAUB, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ही है हमारा जो हम अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड और थर्ड क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज सेकंड में हमको S चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, थर्ड में भी S चाहिए जो यहाँ नहीं है. सो अब हम इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसके बाद करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप रखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ से आपने पता किया कि कौन सा इक्वेशन लगेगा. क्लियर है कि वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ v इज 0 बिकॉज दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड वी विल फाइंड u इज इनिशियल वेलोसिटी. ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है. प्लस a एक्सेलरेशन नेगेटिव -5 एंड t टाइम इज 1.5 सेकंड. नाउ 0 इज इक्वल टू u माइनस 15 5 जा, तो ये हो गया आपका 7.5 और ट्रांसपोजिंग करेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट. तो दिस इज द आंसर इन मीटर पर सेकंड. वी हैव इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड स्टूडेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर. हमारी जो ये वेलोसिटी आई है u इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? एज यू नो, u इन किलोमीटर पर आवर. तो u आपका गिवन है 7.5 मीटर पर सेकंड. आपको बता चुके हैं कि अगर मीटर पर सेकंड गिवन है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 5/18, इट बिकम्स किलोमीटर पर आवर. इसको हमें सॉल्व करना होगा. आप देख सकते हैं इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा. 75 मल्टीप्लाइड बाई 5/180. अब इसको अगर आप सॉल्व करें 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 36. अब हमारा हो गया ये आपका 75/36. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हियर देयर इज ए करेक्शन. कुछ मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट, तो डोंट वरी. यहाँ पे एक्चुअली हमें मीटर पर सेकंड गिवन है और हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में. तो हम 5/18 नहीं बल्कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट, वी विल मल्टीप्लाई बाय 18/5 एंड इट बिकम्स किलोमीटर पर आवर. तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, देयर इज करेक्शन था, हमने करेक्ट किया. अब इसको आप क्या करेंगे? हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 × 18/50 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट्स, तो 25 3 जा 25 2 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 9 3 जा, बोलिए स्टूडेंट कितना हुआ? 9 3 जा आपका हुआ 27 किलोमीटर पर आवर. तो ओके स्टूडेंट्स, after few correction we have completed the solution. Initial velocity 7.5 meter per second and this can be said that
27 किलोमीटर पर आवर इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। बहुत ज़्यादा आंसर। तो स्टूडेंट आई होप कि आप इसको समझे होंगे। और सिमिलरली जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा और इन्हीं में से कोई एक ही क्वेश्चन लगेगा। देखिए कैसे करते हैं, तब तक नोट कीजिए से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हियर देयर इज सेकंड क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन a bike initially moving at 18 km per hour accelerates at 5 meter per second square for 5 seconds. Find distance covered by bike and the final velocity. तो स्टूडेंट्स यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको मालूम चलता है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। गिवन अ बाइक इनिशियली मूविंग एट 18 km per hour, that is u is given here. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट इसको हमें कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, बिकॉज एक्सेलरेशन इज गिवन इन मीटर पर सेकंड एंड टाइमिंग इज आल्सो गिवन 5 सेकंड। तो एज यू नो 18 किलोमीटर पर आवर कैन बी कन्वर्टेड एज मीटर पर सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, इट बिकम्स 5 meter per second. Okay student, so this is initial velocity. Now timing is given here 5 seconds and we have to find distance covered by bike. Distance means s. s क्या है? Distance. तो we have to find distance and final velocity. Final velocity means v. Question mark. So student, we have two parts. In first part we will solve for distance and in second part we will solve for final velocity. This is final velocity. Final velocity student here. So as you know we have u, t, s and one thing accelerates at 5 meter per second square. So student, this is nothing but acceleration. A is here 5 meter per second square. Accelerates, this बार retardation नहीं है, acceleration is there. तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे A is equal to 5 meter per second square. अब now student we have U, T, S and A. अगर हम इन क्वेश्चंस पे आए तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो फर्स्ट केस के लिए हम यूज कर सकते हैं? ये फर्स्ट केस है जिसमें हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और ये सेकंड केस है। तो स्टूडेंट्स क्लियरली वी हैव यू, टी, एस एंड ए। तो यू, टी, एस एंड ए सेकंड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड ही एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें यू, टी, एस, ए मिल रहा है और हम इसकी हेल्प से डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब डिस्टेंस आ जाएगा तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे निकालने की फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट हियर we can write solution from second equation of motion. We have s is equal to ut plus half at square. Student, we have to find distance, that is s is equal to u is given here of 5 meter per second, 5, and timing is also given 5 second plus 1/2. Acceleration is 5 meter per second square and timing is t, 5 second, 5 square. Students, we have put all the values. Now 25 plus here 5 multiplied 5 square 25/2. तो 25 plus 25 5 जा 125/2 is done here. तो 25 प्लस अब 125 को हाफ करेंगे तो आपका आएगा 62.5। आप देख सकते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 5.257628 87.5 मीटर इज डिस्टेंस बाइक विल कवर आफ्टर 5 सेकंड। बाइक विल कवर आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद यानी 5 सेकंड बाद बाइक यहाँ तक पहुँच जाएगी। 87.5 इज द
distance. Okay students, now in second part we have to find this final velocity. ये final velocity आपको find करना है, तो which formula should be used? देखिए हमारे पास एक फार्मूला था फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्टूडेंट हियर। हमें फाइनल मालूम है, हमें फाइनल पता करना है, सॉरी इनिशियल मालूम है, ए मालूम है, टी है, तो सीधे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v is final velocity and final velocity we will have to find. तो v is equal to u initial means 5 meter per second plus a acceleration means 5 meter per second square and time t is 5 second. Now 5 plus 5 5 25, 5 30 meter per second will be the student final velocity. स्टूडेंट रिमेंबर, कभी भी आप इन दो 5 को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना यहाँ कौन सा रूल लागू होता है, बॉडमॉस। आपने ये रूल पढ़ा ही होगा छोटी क्लास में कि बॉडमॉस को फॉलो करता है। बहुत से स्टूडेंट गलती कर सकते हैं कि इस 5 को ऐड कर दें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। नो, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन ऐड बिकॉज ऑफ बॉडमॉस। तो बॉडमॉस इज द बेसिक रूल टू कैलकुलेट नंबर्स। तो ओके स्टूडेंट, it is a solution of second question based on equations of motion. So write down हाँ, तो स्टूडेंट हियर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। तो हियर स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज टू यू टू सॉल्व। रेसिंग कार इज इनिशियली एट रेस्ट। स्टूडेंट हियर initially means u is equal to 0, accelerates at uniform rate of 5.5 meter per second, a is equal to 5.5 meter per second square for 10 second, t is equal to given here 10 second. तो टाइम t here student you have to find distance s question mark and final velocity v question mark. So these are the points given and you have to find distance covered and final velocity as you have saw previous question. So similarly student, you will do this question and I hope from your book NCERT as well as from S. Chand you will have to solve numericals and if you will have some problems then you can ask. So student write down this question एंड सॉल्व एंड जो चैनल है उसको जो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब में आपको लेटेस्ट वीडियो और पुराने वीडियो सब आपको मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स लर्न ऑल द फार्मूलाज, रीड क्वेश्चन केयरफुली देन सॉल्व अटेंटिवली। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप जरूर न्यूमेरिकल्स करेंगे और हमारा लगभग जो पहला चैप्टर है मोशन वो एंड की ओर जा रहा है और इस पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, आप सभी को जो है इसको सॉल्व करना है, लर्न करना है और रेडी रहना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।